Hello students, how are you? I think you all are fine. Okay, very good. So in previous class yesterday we did first two stanza of our poem, that is on Shakespeare 1630. And in this poem the poet is saying that Shakespeare is a kind of person who has no need any monument. So first stanza question, the poet is raising a question, and he is saying, and he is asking from us that is there any need to make a tomb? Is there any need to bury the ashes or the mementos, the respected mementos of Shakespeare to hid under a piled stone structure? So after that he is giving answer of his question that there is no need to make a structure of these kind of things. There is no need to make a tomb or pyramid for Shakespeare, because he has already made his own live long monument in our heart through his writing. After that he is saying, the poet is saying here that this kind of structure is a very weak witness in front of Shakespeare, because Shakespeare is a kind of person who has no need of any tomb or who has no need of any introduction, because he is in everybody's life. Everybody who is fond of literature or who is reading any type of literary works, he definitely reads Shakespeare in his life. So that's why there is no need to remember Shakespeare as a monument or in the memory of monument or tomb. So all these things he asked in the two stanzas. So I am repeating all those four stanzas in a continued way so that we can continue the last two stanzas. Okay. What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones? कि कड़ी परिश्रम करते हुए कि with the labor of ages we built a stone pile, a piled stones structure just to hid his ashes under it. Is there any need of that? कि क्या एक आवश्यकता है कि एक ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसके नीचे जो एक सम्मानित जो शेक्सपियर है उसकी एशेज को, उसकी राख को उसके नीचे दबाया जाए और उसकी याद में एक पिरामिड या एक ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ढांचा बनाया जाए? क्या ऐसी आवश्यकता है? और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड, या फिर हिज रेस्पेक्टेड मेमेंटोज शुड बी हिड अंडर ए स्टार वाई पॉइंटिंग पिरामिड? या फिर कवि कहता है, the poet is saying here, that is there any need, or is there any need to make a star Y pointing pyramid, to make a structure to hid his respected mementos under it? कि क्या एक स्टार वाई पॉइंटिंग पिरामिड, यानी कि एक जैसे पिरामिड जो पुराने समय के अंदर बनाए जाते थे, कि क्या इस तरह के किसी एक पिरामिड के बनाने की आवश्यकता है कि जिसके अंदर उसके स्मृति चिन्हों को जो है रखा जाए? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्हाट नीडस्ट दाउ सच डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम? तो कवि कहता है, द पोएट इज सेइंग हियर दैट ही इज अ सन ऑफ मेमोरी. He is in everybody's memory. That's why we can say he is a son of memory, great ear of fame. He is an ear of fame. Ear मतलब उत्तराधिकारी. He is ear of fame. वो उत्तराधिकारी है प्रसिद्धि का. प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी means he is so famous in his life. Does what needest thou such weak witness of thy name? When a person is already in everybody's memory, when a person is already so much famous, then is there any need to make a such pyramid that is so weak in front of his name? कि क्या एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उसके सामने ये क्या कोई मायने रखता है कि उसके लिए एक पिरामिड बनाया जाए, एक टॉम बनाया जाए, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए? तो ये तो क्या है, एक वीक विटनेस के समान है, अर्थात उसके नाम के सामने ये तो एक बहुत ही कमज़ोर चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वट एवर ही हैज़ रिटन इन हिज लाइफ इज़ एवर लास्टिंग.
That is his monument. People should remember him through his work. So that's why the poet is saying that if we make any kind of structure in the memory of Shakespeare, it will be very weak in front of his name. ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसके नाम के सामने. क्यों कमज़ोर है? क्योंकि with the time passes, as the time passes, the monument would be वेनिस्ड और वुड बी ruined. कि जो मोन्यूमेंट्स हैं वो क्या है, खंडर में तब्दील हो सकते हैं. इट कैन बी चेंज्ड इन ruins, बट हिज लिटरेरी वर्क कांट वैनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड. इस संसार से उसको कभी गायब नहीं किया जा सकता, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. तो इसीलिए कवि कहता है कि उसके नाम के लिए ये सब कमज़ोर है. इसके नाम के सामने उसने खुद ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि ये सारे जो टॉम या पिरामिड्स या जो भी हैं ये सब उसके सामने बिल्कुल एकदम से शून्य है. आफ्टर दैट द पोएट इज सेइंग, फॉर वाइलेस्ट टू thy same of slow enduring art, thy easy numbers flow and that each heart. What is the poet saying here? कि for whilst, for means because. Why all these are so weak in front of his name? Why these are weak witness in front of his name? Because whilst to, this one is thy means your. It is very shameful for you to slow endeavoring art. slow धीमे, endeavoring endeavor करना, किसी को जो है वो ग्रहण करना कोई चीज़ को या उसकी प्रशंसा करना हम ये कह सकते हैं. ठीक है, तो स्लो एंडेवरिंग आर्ट. आर्ट मतलब कला. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है? स्लो एंडेवरिंग आर्ट का उसका मतलब क्या है? द स्ट्रक्चर दैट इज मेड और बिल्ड अप वेरी स्लोली. स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ड अप वेरी स्लोली. यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे वो बात कर रहा है भवन निर्माण कला की. भवन निर्माण कला की, क्योंकि जिस प्रकार से भवन बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है कि एंड द टाइप दैट बिल्डिंग इज मेड और बिल्ड अप, दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन वेरी स्लोली. ये काम जो है वो बहुत ही धीमे धीमे जो है वो चलता है, आगे बढ़ता है. जैसे भवन निर्माण का काम जो होता है वो बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ता है. तो इसीलिए वो कहता है, कवि कहता है कि फॉर वाइलेस्ट, क्योंकि वाइलेस्ट टू दाई शेम, कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी से भरा हुआ होगा. ऑफ स्लो एंडोवरिंग आर्ट, कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही एक स्लो एंडोवरिंग आर्ट के समान होगा. अर्थात तुम्हारे लिए किसी भवन निर्माण को बनाया जाए और वो भी बहुत ही धीमे धीमे, तो ये तो तुम्हारे नाम के सामने एक बहुत ही शर्मनाक सी चीज़ होगी, क्योंकि तुमने तो बहुत तेज गति से जो है अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है. यू गेट फेम in a very rapid speed. Your pace of getting fame was very fast. So in front of your name, in front of your fame, this type of slow enduring art means this type of this type of structure that is made up very slowly is a very weak witness in front of you. So the poet is saying here कि for whilst to thy shame of slow enduring art, thy easy numbers flow, and that each heart. That this is very shameful in front of you, that in the memory of you, this type of structure should be made that is built up very slowly, because thy easy numbers flow. Thy means your. Easy, आसानी से. Numbers means here written work. The work that had been written by the Shakespeare, जिन्हें लिखा गया था किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा. हम उसकी बात कर रहे हैं कि your easy numbers flow means the written work that you had wrought, you had written in your life is flowing. Flowing means
गोइंग फास्ट, बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ना, मीन्स इज़ गोइंग वेरी फास्ट इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स और इज़ गेटिंग सो मच फेम वेरी रैपिडली, कि वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत तेज़ गति से अपनी प्रसिद्धि जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो कहता है कि ये जो तुम्हारे सामने है बहुत ही शर्मिंदगी से भरा होगा कि तुम्हारे लिए धीरे धीरे जो ऐसे ढांचों का निर्माण किया जाए, क्योंकि द इजी नंबर्स फ्लो, कि तुम्हारे जो द्वारा लिखे गए जो बुक्स हैं या जो रिटन वर्क है वो बहुत ही तेज़ गति से जो है वो आगे बढ़ते हैं। एंड दैट ईच हार्ट, और हार्ट, ईच हार्ट मीन्स एवरी रीडर, that each heart means every reader who is reading your work is getting very rapidly. Hath from the leaves of thy unvalued book, means hath means has, that every readers has from the leaves means pages of the books of thy, your unvalued book, the book that has so much value. So what the poet is saying here, try to understand it very intently, ध्यान से इसको जो है वो समझने का प्रयास करें। क्या कहता है कवि? उसने पहले कहा था कि तुम्हारे सामने ये सब क्या है, वीक विटनेस है। क्यों वीक विटनेस है, उसी चीज़ को आगे ये समझा रहा है। कहता है कि for whilst to thy shame of slow endeavoring art, because it is very shameful for you that this type of slowly build up structure was made or has been made for you, कि तुम्हारे लिए इतने धीमे से जो है वो स्ट्रक्चर, जो बनने वाले स्ट्रक्चर हैं उन्हें बनाया जाए, ये तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही शर्मिंदगी से भरा हुआ है। बिकॉज योर ईजी नंबर्स फ्लो, बिकॉज योर रिटन वर्क इज फ्लोइंग वेरी रैपिडली, तुम्हारे जो है रिटन वर्क जो है, वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में किया है वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है। दैट ईच हर्ट, कि प्रत्येक जो रीडर है, हैज़ फ्रॉम द लीव्स, कि हैज़ गेट एवरीथिंग और हैज़ गेट और हैज़ इंस्पायर्ड, वो तुमसे इंस्पायर हुआ है फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, कि उन पन्नों से, उन रिटन वर्क से ऑफ दाई योर अनवैल्यूड बुक, कि तुम्हारी वो बेसकीमती जो किताबें हैं उनसे हर व्यक्ति का जो हृदय है वो प्रभावित हुआ है, उस हर व्यक्ति के हृदय में तुम बसे हुए हो। द पोएट इज सेइंग हियर दैट यू आर इन द हर्ट ऑफ ईच एंड एवरी रीडर हु हैज़ read your book, your unvalued book, यानी कि जो जिसने भी तुम्हारी किताबें पढ़ी हैं उस हर व्यक्ति के, उस हर रीडर के हृदय में तुम क्या हो, बसे हुए हो। Those Delphic lines with deep impression took, क्या कहता है कवि कि those Delphic lines, Delphic means elegant, शानदार, कि those Delphic lines, कि वो शानदार सी पंक्तियां विद डीप इंप्रेशन टुक, कि उन्होंने बहुत ही गहरा प्रभाव हर व्यक्ति के हृदय पर डाला है, हर रीडर के हृदय पर डाला है। देन यू, दाउ मीन्स योर, सॉरी यू, देन यू आर फैंसी ऑफ इटसेल्फ ब्रीविंग, तो इसीलिए तुम क्या हो, देन यू, तब तुम जो है आर फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना, सोच, इमेजिनेशन। Then you are in the imagination of arts, कि तब तुम क्या हो, हमारी कल्पना हो। कहता है कि देन यू आर फैंसी, कि तुम तो हमारी क्या हो, कल्पनाओं में बसे हो। ऑफ इट सेल्फ ब्रीविंग, जो कि अपने आप में क्या है, हमें आत्मविभों जो है विमोह कर रही है, अर्थात हमें खुद को जो है वो आपके तरफ प्रभावित कर रही है। डज मेक अस मार्बल विद टू मच कंसीविंग, तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है, फॉर ए पर्सन हु इज इन एवरीबडीज हार्ट, डज a monument make for that kind of person? So does make us marble, कि क्या हमें एक मार्बल से मतलब पत्थर से बनी हुई एक जो है कब्र जो है वो उसके लिए बनानी चाहिए, with too much conceiving, कि बहुत ज़्यादा जो है कंसीव के साथ में। कंसीविंग से मतलब यहाँ पे क्या है, विचार, थॉट्स को लेकर के इसने कहा हुआ है। कंसीविंग मतलब
थॉट्स, कि इतने सारे विचारों के साथ में क्या हमें उसके लिए एक मार्बल की जो स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए। एंड सो स्पेलकर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, डोस्ट मीन्स डज। तो कहता है कि एंड सो, तो और इसलिए स्पेलकर्ड, स्पेलकर्ड मीन्स ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सन बरीड, कि एक व्यक्ति जिसे जहाँ पर दफनाया जाता है उसे, उसको स्पेलकर्ड कहते हैं। ए प्लेस ऑफ डेड बॉडी, अ प्लेस ऑफ डेड बॉडी, इसे बोलते हैं स्पेलकर्ड। कि एक ऐसा स्थान जहां पे मृत व्यक्ति को जो है वो दफनाया गया है, इन सच पॉम्प, बहुत ज्यादा शानो शौकत के साथ में, डस्ट लाई, और वो वहां पर लेटा हुआ है। यानी कि ये कब्रिस्तान की बात हो रही है, कब्र की बात हो रही है। तो कहता है कि इसलिए एक कब्र में लेटा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ही शानो शौकत के साथ में उसे वहां पर लेटाया गया है। ये बात हो रही है एंशियंट टाइम्स के जो किंग्स हैं उनकी, प्राचीन समय के राजा महाराजाओं की बात हो रही है कि इन एंशियंट टाइम्स किंग्स वर बरीड विद वेरी पॉम्प एंड शो। राजाओं को बहुत ही शानो शौकत के साथ में जो है वो वहां पे दफनाया चाहता था। वो जिनको इतने शानो शौकत के साथ में दफनाया गया, वो भी ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करें जो शेक्सपियर ने प्राप्त की है। दैट किंग्स, वो राजाएं, जो राजा जो है वो भी ये चाहते हैं फॉर सच ए टॉम, कि हमारे लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जाए, वुड विश टू डाई, कि जो मरने के बाद में जो है वो बनाना चाहते हैं कैसा, शेक्सपियर के जैसा। दैट दोज किंग्स आल्सो वांट टू बिल्ड अप अ मोन्यूमेंट फॉर देमसेल्फ एज द फेम शेक्सपियर गेट, कि जितनी प्रसिद्धि शेक्सपियर ने प्राप्त की है उसी प्रकार की प्रसिद्धि वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। यही यहाँ पर कवि कहना चाहता है। यानी कि कवि कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज़ गेट सो मच फेमस, जिसने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का मकबरा बनाना जो है वो सही नहीं है। उसे तो हमें बस केवल अपने हृदय में याद रखना चाहिए। दैट काइंड ऑफ पर्सन शुड बी रिमेंबर्ड विद हिज लिटरेरी वर्क, ऐसे व्यक्ति को उसके लिटरेरी काम के साथ में याद किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास में एक्सप्लेनेशन थर्ड पोएम का ऑन शेक्सपियर 1630। इसके बाद में हम फोर्थ पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन सेंड मी ए मैसेज ड्यूरिंग स्कूल टाइम from 8:30 to 2:30. You can send me message, so definitely I will give you answer. I will reply of your questions. Thank you.